Hello students, once again I Hemant welcome you at Hamdisha English classes. Today I am very happy to summarize Lost Spring lesson number 2 from Flamingo from 12th class. I am going to summarize in both ways in English and Hindi. The Lost Spring, this is the lesson written by Anis Jung. Beautifully description is here and I am going to summarize. The story Lost Spring is a creative story and very enthusiastic way and enthusiastic introduction of Anis Jung and this Lost Spring also. The Lost Spring describes the very merciful condition of poor children, those who are forced to miss the joy of childhood due to socio-economic condition that prevails in this man-made world. These children are denied the opportunity of schooling and forced into labor early in life. Here, the meaning of lost springs means their childhood. Their childhood is lost somewhere because of their poor conditions, and those children are forced to do labor also. So, let us start the summary in English first. Sahib, the son of migrant family from Dhaka, is rag keeper who lives in Simapuri at the periphery of Delhi and goes about barefoot rummaging around in the heaps of garbage to earn its livelihood. For the children like Sahib, a heap of garbage is like a gold mine. Thousands of such children live with their families in Simapuri. They live in slum with not even the basic amenities such as water and sanitation available to them. These families are living in utter poverty. What is the magical wonder about it that I am going to describe here? The children have nothing to do except keeping through which they earn something to eat, at least garbage to elders in this means of survival. But for these children, it is a magical burden. In order to earn better, Sahib starts working at a tea stall where he is paid 800 rupees per month. But it seems he, after this loss his liberty, he was for someone else and is no longer with his old master. This loss of identity weighs heavily on his tender shoulder. Yeah, the another part of this story belongs to Mukesh and is young. Then hereafter tells us about Mukesh, another young boy who wants to be his own master. He is a boy from Firozabad glass industry and as a family tradition, he has always worked in the glass bangles factory. Here, the children work as close proximity of furnaces in such high temperatures that they are exposed to various health hazards, even losing their eyesight. Mukesh's family, like other families of Firozabad, are victims of poverty. His father is blind and all family members live in a small half constructed house. These people, Firozabad people, are exploited by the saukars, the middlemen, the policemen, the bureaucrats, and the politicians. But Mukesh is different and confident. He wants to be a motor mechanic. Depravity of child labor is described in a story. The author brings out of the depravity of child labor. Childhood is considered as spring of human life, full of joy, pleasure, and play. But ironically, millions of children like Sahib and Mukesh have lost their spring. That is, children by getting engaged in making a living. At the end, at the conclusion, we may say the summary gives up
an analysis of impoverished conditions faced by many children that compel them to a life of pain, oppression, and lack of education. So, student, this was the summary. I request you to go through line by line. Before going to this story, open your book properly, and this summary will be helpful to you to find out your answer of your questions in the examinations. One more request from my side to subscribe, like, and share my channel. Share with your friends, those who are studying in 12th class. They will be also beneficial. With this, I am completing my summary in English, and next part in Hindi I would like to utter over here. हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको हिंदी में 12वीं कक्षा की फ्लेमिंगो किताब में से पाठ 2 का लास्ट स्प्रिंग की समरी, जो कि एनिस जंग के द्वारा लिखी गई है, मैं आपको समझाना चाहूँगा सारांश इसका। इस सारांश को यदि आप अच्छी तरह से सुनेंगे और आप किताब पढ़ के अगर इसको देखेंगे, किताब खोल के सामने के रख के इसको सुनते जाएंगे लाइन बाई लाइन, तो ये आपको बहुत ज़्यादा सहायक होगा आपकी परीक्षा में सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। बहुत अच्छी तरह से संभव होगा और आप अपने आप को सक्षम बना सकते हैं। तो आइए सारांश की तरफ, हिंदी वर्जन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं परिचय बता दूं इसमें कि लास्ट स्प्रिंग कहानी में उन गरीब बच्चों की अत्यंत नाजुक दयनीय, मतलब यहाँ नाजुक दयनीय मतलब उनकी आर्थिक व्यवस्था से संबंधित है, का वर्णन किया गया है। यहाँ पे लास्ट स्प्रिंग का मतलब क्या है कि जो लोगों ने उनके आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए अपने बच्चों को मजदूरी के लिए बाध्य किया गया है और उनकी स्थिति सही हो जाए, आर्थिक रूप से उनको दिक्कत नहीं हो, इसलिए बच्चों को मजदूरी की तरफ झोंका जाता है और इसी वजह से उनका बचपन छिन जाता है, अपने स्कूलों की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जो कि एक थोड़ा घृणित सा भी है। इस मानव की बनाई हुई दुनिया में पूरी तरह से व्याप्त रूप से सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण बचपन की खुशी का त्याग करने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये बच्चे स्कूल जाने की सुविधा के अवसर से वंचित हैं और ज़िंदगी की शुरुआत में ही मजदूरी करने को बाध्य किया गया है। सबसे पहले समरी जब चालू होती है, एक गंदी सी बस्ती का वर्णन छोटा सा इसमें है, जो कि ढाका के एक प्रवासी परिवार के बेटे साहब का एक कचरा बेचने वाला है, जो सीमापुरी में रहते हैं। यह जगह दिल्ली की आसपास की परिधि में आता है। वो आजीविका कमाने के लिए कचरे के ढेर में चारों ओर नंगे पांव घूमता है। इसका नाम साहेब है, साहेब आलम। तो इसकी जब लेखिका से मुलाकात होती है तो बोलता है कि मेरे को आप साहेब कह सकते हैं। तो चारों ओर नंगे पांव घूम के अपनी आजीविका कमाने के लिए कचरा बीनता रहता है और साहेब जैसे बच्चों के लिए कचरे का ढेर तो सोने की खान की तरह है। ऐसे हजारों बच्चे अपने परिवार के साथ सीमापुरी में रहते हैं, ऐसी गंदी बस्तियों में रहते हैं जहाँ पर पानी और सफाई जैसे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भी मौजूद नहीं है। ये परिवार अत्यंत ही गरीबी का जीवन असर कर रहे हैं। इनका जीवन बसर तो ऐसे ही चल रहा है। अब यहाँ पे एक मैजिकल और मिरेकल, जिसको अपन जादुई आश्चर्य कह सकते हैं, क्या होता है कि ये कचरा बीनने के अलावा कुछ भी नहीं करते बच्चे और इनके द्वारा कम से कम खाने के लिए कुछ कमाते हैं। बड़ों के लिए कचरा बीनना आजीविका का एक साधन है, लेकिन बच्चों के लिए जादुई आश्चर्य है। और इससे ज़्यादा अच्छी कमाई करने के लिए साहिब नाम का लड़का जो है एक चाय की स्टॉल पर काम करना शुरू करता है, जहां उसे प्रति माह 800 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इसके बाद में वे अपनी पूरी स्वतंत्रता आज़ादी खो देते हैं। क्या है बचपना, क्या है बचपन का स्कूल जाना, क्या है बचपन में स्कूल जाके दोस्तों के साथ चहकना, क्या शिक्षा लेना, क्या स्कूल का मनोरंजन, ये सब आज़ादी खो देते हैं। वह किसी और के लिए काम करते हैं और पहचान का नुकसान उनके कोमल कंधों पर भारी पड़ता है।
इसमें इस कहानी में एक दूसरा लड़का मुकेश है, उसकी कहानी जुड़ जाती है कि अनीस जंग जो लेखिका है फिर एक अन्य युवा लड़के मुकेश के बारे में बताती है कि वह स्वयं मालिक नहीं है, अपना मालिक खुद बनना चाहता है। फिरोज़ाबाद के कांच उद्योग में कार्यरत एक लड़का है। एक पारंपरिक परंपरा के रूप में उसने हमेशा कांच की चूड़ी के कारखाने में काम किया है। यहाँ बच्चे ऐसे उच्च तापमान की भट्टियों के निकट में काम करते हैं जिससे कि उन्हें स्वस्थ रहने का खतरा बना रहता है। यहाँ तक कि उसकी आंखों की रोशनी भी खो जाती है। ये फिरोज़ाबाद शहर के आसपास का वर्णन है। मुकेश जो लड़का है उसका परिवार के सारे सदस्य अन्य परिवारों की तरह गरीबी का शिकार हैं। उनके पिता अंधे हैं। वह एक छोटे से अर्धनिर्मित घर में रहते हैं। पूरी तरह से घर नहीं बंधा हुआ है, हाफली कंस्ट्रक्टेड है। और फिरोज़ाबाद के इन लोगों का साहूकारों, बिचौलियों, पुलिस वालों, नौकरशाहों और राजनेताओं के द्वारा शोषण किया जाता है। लेकिन मुकेश उससे भिन्न और आत्मविश्वास से भरपूर है। वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। यहाँ पे गंभीरता देखिए किस ढंग से प्रस्तुत की गई है। ये गंभीरता मतलब कौन सी ऐसी वैसी गंभीरता नहीं, सुलभ मन बाल श्रम की गंभीरता। कहानी में लेखिका बाल श्रम की गंभीरता को सामने लाई जाती है लेखिका के द्वारा। और बचपन को भी मानवीय जीवन का आनंद और खेल से भरा वसंत माना जाता है। लेकिन विडंबना सबसे बड़ी है कि साहेब और मुकेश जैसे लाखों बच्चों ने अपना वसंत खो दिया है, यानी कि अपना आजीविका कमाने में व्यस्त हो गए। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इनमें कई बच्चों की दयनीय जीवन जीने के लिए जिस प्रकार बाध्य होते हैं, उन्हें बेदर्द, विवशता या अशिक्षा का जीवन जीने के लिए विवश होते हैं। उन्हें दर्द, उत्पीड़न और शिक्षा की कमी के जीवन की निंदा करता है। तो स्टूडेंट्स लोग, ये सारांश है द लॉस्ट स्प्रिंग फ्लेमिंगो 12वीं क्लास के पाठ का फ्लेमिंगो किताब में से लिया हुआ पार्ट नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग एनिस जंग के द्वारा लिखी हुई इनकी समरी मैंने इंग्लिश में भी और हिंदी में भी वर्णन यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे आप लोग अच्छे ढंग से सुनेंगे तो आप अपने आप को बहुत मजबूत पाएंगे। इनसे संबंधित, इस पाठ से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आएंगे परीक्षा में, उसके आंसर्स देने के लिए एक बार फिर से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। हेम दिशा इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना न भूलें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए और अव्वल नंबर से पास हुई है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।